Hello everyone, welcome to our PD and this is Shubha. So this video is for all the ones who are preparing for HPCL CBT. Here I will help you to crack the code of 17 out of 17 in your verbal English. Be it you are preparing for your executive officer level or it may be for JEO. This video is certainly going to be very helpful for you. The reason I say so is because in this video I'm going to showcase you some of the most important rules of English, and that to only 20. But these 20 rules are very important because there were lots of questions in your PYQs that came certainly from these 20 rules. You will get an idea if you have gone through the PYQs and analyze it. You will see, wow, if we learned these rules earlier even, we were able to score more than half of the weightage of the total marks. So yeah, it's very easy, but just remember consistency and practice is very important in these domains. Secondly, if you want the documentation, that every day I'm circulating a lot of good documentations, and this would be circulated in the free WhatsApp group. You can join the link, and the link of the free WhatsApp group would be attached with this video. So yeah, don't forget to join the WhatsApp group as soon as you watch the video and to get the documentation. So let's get started, and I'll be explaining you one by one all the rules. Now, the very first rule is based on the verb part, and this was the exact question, guys. Stative verb, stative होता है state. State क्या होता है? जैसे आप कभी किसी चीज़ को जानते हैं तो आपकी state है know की, अंडरस्टैंड करते हैं समझने की स्टेट है, किसी को प्यार करते हैं लाइक करते हैं, ये सारी स्टेट्स होती हैं क्योंकि ये हमेशा ही ऐसे रहती हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. हमने जब वर्ब्स की क्लास की थी, व्हेन आई डिड इन दैट मॉड्यूल आल्सो व्हेन आई एम डूइंग द क्लासेस, इन वर्ब्स आई एक्सप्लेन यू द लॉट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स: transitive, intransitive, helping verbs, main verbs, and even so one of the category is stative verb. That is the verbs which tell us about the state. Like I own a house, I understand you, I like you, I hate you. इन verbs के साथ आप INGs नहीं लगाते हैं. So let's read it together. Some verbs describe a state, not an action you can do. That's why they usually don't come in continuous form. अब इन verbs के साथ आप INGs नहीं लगाते हैं. If you say I am knowing, it sounds unnatural and immediately signals incorrect grammar in spoken English. So yeah, I know him, that's right, because that's a state, you know that person. I am knowing him is absolutely wrong. I understand your point, I am understanding your point is wrong. Similar, there are certain questions which are given at the end also of these descriptions. I am believing you, no, I believe you. She is knowing the answer, she knows the answer. I am wanting coffee, I want coffee. पेपर में आपसे पूछा गया है स्टैटिव वर्ब फिल करने के लिए अंडरस्टैंड क्वेश्चन था, तो अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड लगेगा, ऑप्शन में अंडरस्टैंडिंग भी था. एंड समटाइम्स यू फिक्स इट राइट एंड यू से अंडरस्टैंडिंग इज एब्सोल्युटली राइट. अब से पता होना चाहिए अंडरस्टैंड इज अ स्टैटिव वर्ब और ING नहीं लगता है. सेकेंड क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर लाइफ एक्सपीरियंसेस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई टेल यू व्हेन यू डू टेंसेज ना, टेंसेज आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत आते हैं. एंड ऑल्सो रिमेंबर देयर आर सर्टन एक सीक्वेंस है या एक सर्टन आपके ग्रुपिंग्स हैं, ग्रुप्स जो इकट्ठे रहते हैं. जैसे अगर वर्ड्स आ जाए अगो, येस्टरडे, प्रीवियस ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, कौन सा टेंस लगेगा? अब अगर मैं बोलूँ आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे या आई हैड गॉन टू मार्केट येस्टरडे, दोनों ही ठीक लगते हैं. कंफ्यूजन कहाँ पे आती है? मैंने आपको एक रूल बताया था कि भाई जब अगो येस्टरडे आ जाए तो सिंपल पास्ट लगता है, तो उसी तरह से हमें याद करना है. अब लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं मेरे कुछ जो शायद मैं चेरिश करती हूँ आज तक, तो उसके लिए मुझे प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है. प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस होता है? जैसे कोई स्टेट था, कोई टेंस है आपका, किसी चीज़ को क्लास स्टार्ट हुई, वीडियो स्टार्ट हुई, अभी तक चलती जा रही है, आप सुन रहे हैं वीडियो को, तो मतलब द क्लास हैज़ स्टार्टेड मे बी 4 minutes ago, 5 minutes ago, पर सेंस और फॉर ज़्यादा आता है परफेक्ट में, तो क्लास हैज़ स्टार्टेड फॉर लास्ट 12 minutes, 10 minutes, 5 minutes, या सिंस 5 PM कुछ भी लगा दीजिए. तो सिंस और फॉर का यूसेज भी मैंने आपको कराया हुआ है. नाउ रिमेंबर वन थिंग, हियर दे आर टेलिंग use simple past when the time is finished or mentioned, like yesterday, last year, in 2020. Use present perfect when you talk about an experience in your life without using when. जब आप नहीं बताते हैं, टाइम नहीं बता रहे हैं आप, so it avoids the listener saying when exactly. अब I have visited London, it is absolutely right, आप एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया. और अगर आता I visited London, अब यहाँ पे इन है, सिंस और फॉर होता तो क्या लगाते? हैज़ और हैव लगाते. गॉट इट? तो अगर मेरे पास यहाँ पे सिंस और फॉर होता तो मैं लगाती I have visited London for since 2020.
अब आ जाता है यहाँ पे क्या है, इन है, और यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर आपको टाइम इंटरवल मेंशन है दैट वुड बी आपका डायरेक्टली सिंपल पास्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, आई हैव विटनेस द बेस्ट ऑफ एडवेंचर्स, तो मैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सपीरियंसेस को बताऊंगी जहां पे मेरे पास टाइम मेंशन नहीं है, ये याद रखना है। एग्जाम्पल है, आई डैश हिम येस्टरडे, गाइस आई मेट हिम येस्टरडे। आई डैश मुंबई, कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, एक्सपीरियंस है, टाइम नहीं है। आई हैव विजिटेड मुंबई। आई डैश मुंबई इन 2020, तो होता आई विजिटेड मुंबई इन 2020, इसको याद करना। She dashed this before, she did this before, के have done this before, she has done this before। टाइम नहीं है ना, इन चीजों को साथ साथ में last night आ गया तो क्या लगाओगे, simple past। We dashed that movie last night, we watched that movie last night। तो इसमें simple है, टाइम इंटरवल है, तो आप इसमें simple past लगाओगे। Let's go with the third rule। थर्ड रूल says is, जब आपका ongoing कुछ चीज एक्टिविटी चल रही है, The way I will say is, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लास्ट 10 डेज से। अगर तो लास्ट 10 डेज हैं तो ठीक है, अदरवाइज अभी भी प्रिपरेशन चल रही है, अभी भी क्लासेस सुन रहे हैं। I have been preparing for last 10 days. I have been preparing since the notification of HPCL came out. So there are different ways. When something started in the past and it is still continuing, same applies for the class. India has been independent since 1947. अभी भी है। The class has been going on for last 10 minutes, for last 5 minutes, अभी भी चल रही है। Present perfect और present perfect continuous में थोड़ा variations है। तो that is, अगर आप उसको consistencies में बताते, कोई एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, मैं कब से बोल रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, सिंग कर रही हूँ, कुछ ऐसी एक्टिविटी है, वर्बल आ जाती है, INGs के साथ यूज होता है, अदरवाइज सिंपल चलता है। So here it is, when something started in the past and is still continuing, English often uses have been plus ing. This makes your meaning very clear. It started earlier and it is still happening right now. और इसके साथ since और for बहुत commonly use होता है। कई बार error spotting भी आएगा जिसमें आगे वाला sentence आपको किसी और में दिया हुआ है tense में, पीछे since और for नहीं है, तो आपको correct करना है कि भाई जहाँ since और for है वहाँ पे perfect tense जरूर आएगा, चाहे वो past में हो चाहे वो present में हो। अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो कॉम्बिनेशन में आएगा सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के। तो कॉम्बिनेशंस याद रखना, एक सेपरेट वीडियो है कंडीशनल्स और टेंसेस की, वो जरूर रेफर करना। कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है, ड्रॉप इन द कमेंट्स, द टीम विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू इन रिप्लाइंग योर आंसर्स। नेक्स्ट इज, जैसे आई हैव बिन वर्किंग हियर फॉर लास्ट 2 years, अब देखो अभी भी काम कर रहे हैं, और फॉर आ गया, सिंस और फॉर का भी बताया था। शी हैज बिन लर्निंग सिंस, देखा सिंस और फॉर कहाँ पे लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट केसेस में। आई एम वर्किंग हेयर सिंस 2022, अभी बताया है, जहाँ पे सिंस है तो लगा दीजिए आई हैव बिन वर्किंग। फॉर 6 months है, शी हैज बिन लर्निंग इंग्लिश। वी आर वेटिंग, वी हैव बिन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। सो दीज वर द वेरी सिंपल रूल्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अभी बताया था सिंस और फॉर का, देखो नेक्स्ट में ही आ गया। सिंस और फॉर में क्या आ रहा है आपका रूल, पहली चीज आपको याद रखनी है, 3 इंडिकेशंस, 3 रूल्स आते हैं सिंस और फॉर में, याद कर लो और साथ में लिख भी लो। फर्स्ट केस आ जाता है सिंस और फॉर में जहां पे मेरे पास कोई मैथ्स नंबर नहीं है। द वेरी फर्स्ट कंडीशन, नो मैथ्स नंबर, न्यूमरल कुछ भी नहीं दिया हुआ। सेकंड केस है, मैथ्स न्यूमरल तो है लेकिन इट इज डेफिनेट, मुझे उस नंबर से कोई डेफिनेट टाइम के बारे में पता चल रहा है, सपोज करो टाइम के बारे में कोई डेफिनेट मुझे नॉट टाइम, अगर तो मुझे शायद किसी ना किसी मोमेंट के बारे में एक फिक्सेशन पता चल रही है, शायद वो ईयर के बारे में पता चल रही है, शायद 2025 2026 कोई भी ईयर है, फिक्स ईयर के बारे में पता चल रहा है तो मैथ्स के नंबर ना 8 इज अ मैथ्स नंबर, 2025 2026 मैथ्स न्यूमरल, लेकिन मुझे फिक्सेशंस के बारे में पता चल रहा है। तीसरा, मैथ्स नंबर हो लेकिन कुछ भी डेफिनेट चीज के बारे में नहीं पता चल रहा है। अगर किसी डेफिनेट चीज के बारे में नहीं पता चल रहा है, मतलब 1 hour, कल मैं आपको 1 hour के लिए पढ़ाऊंगी, विल यू गेट एन इंडिकेशन किस घंटे, कौन से 1 hour, मॉर्निंग के, आफ्टरनून के, इवनिंग के, नो क्लैरिटी। तो जब मैथ्स नंबर तो हो लेकिन क्लैरिटी नहीं है, 50 मिनट्स, नो क्लैरिटी, कौन से 15 मिनट्स, 12 डेज, मैं 12 डेज घूमने जा रही हूँ, कौन से 12 डेज, इस साल के, अगले साल के, कौन से मंथ के। तो अगर आप कोई भी इंडिकेशन देते हैं जिसमें मैथ्स नंबर है लेकिन फिक्स नहीं है, उस केस में सिर्फ हम फॉर लगाते हैं, बाकी दोनों केसेस में हम सिंस लगाते हैं।
जैसे मंडे हो, मंडे में कोई मैथ्स नंबर है नहीं, रूल क्या है, जब मैथ्स नंबर नहीं है तो भाई सेंस लगा दो। जुलाई मैथ्स नंबर है नहीं है, चाइल्डहुड नहीं है, सनसेट सनराइज कोई भी आ जाए जिसमें मैथ्स नंबर नहीं है तो आप सेंस लगाओगे। 1947, 2022, 2024, 21st सेंचुरी, 8 PM, 4 PM, 2 PM कुछ भी आ जाए, फिक्स टाइम के, फिक्स ईयर, फिक्स सेंचुरी की बात हो रही है तो भी मैं सेंस लगा दूंगी क्योंकि मैथ्स नंबर है पर फिक्स्ड है, और लास्ट मैथ्स नंबर है बट फिक्स नहीं है भाई तो हम तो फॉर लगाएंगे। These are the 3 cases of since and for and you can revise with this, right? Very very important for you guys. I have known him since 2015. She has studied for 3 years. कौन से 3 साल नहीं पता। We have visited since 8 AM. He has worked here for a long time. या since a long time क्या आएगा, अब ये आप बताओगे, and it is a maths number नहीं है तो क्या लगेगा, since a long time. Now it is much or many works. अब ये कहाँ डिफरेंस है, देखो मच और मैनी में क्या डिफरेंस आता है, या वर्क और वर्क्स में, इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास 2 नाउन्स है जो हमने पढ़े थे, मल्टीपल नाउन्स आई टोल्ड यू, और नाउन जरूर अच्छे से पढ़ना, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। लेकिन आर्टिकल्स किसके साथ लगना है, जैसे मटीरियल नाउन नो आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नो आर्टिकल, कलेक्टिव नाउन में क्या लगेगा, तो इस तरह से याद रहना बहुत ज़रूरी है, एंड यू विल बी इंस्टेंटली सॉल्विंग एंड एक्यूरेसी इज गोइंग टू बी वेरी हाई। नाउ इट इज़ अबाउट, अगर मैं बोलती हूँ मच और मैनी, मच यूज होता है जब मैं कोई चीज को काउंट नहीं कर सकती हूँ, मैनी द थिंग्स विच आई कैन काउंट वेरी इजिली, तो मच हो गया जो मेरा अनकाउंटेबल, जैसे अगर मैं बोलती हूँ लिक्विड्स, इमोशंस, what you cannot touch but you can only feel, those are the emotions, those are the abstract nouns. होप होना किसी से, मच हो बोलोगे कि मैनी बोलोगे, काउंट नहीं कर सकते, पेन्स के लिए काउंट कर सकते हो तो मैनी बोलोगे, तो मतलब इट्स वेरी सिंपल ट्रिक, जिसके साथ हम काउंट, चाहे वो लिक्विड्स में है तो भी मैं मच लगाऊंगी, कोई इमोशंस है, मेरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है तो भी मैं मच लगाऊंगी, पर जिन चीज़ों को मैं काउंट कर सकती हूँ उसके साथ मैं मैनी लगाऊंगी। आई हैव मैनी वर्क टू डू, नहीं मैं वर्क को काउंट नहीं कर सकती हूँ, मैं वर्क के अंडर मुझे कितने टास्क असाइंड है मैं उसको काउंट कर सकती हूँ। आई हैव मच वर्क टू डू टुडे, शी गेव मी मैनी एडवाइस, नो मच एडवाइस, और एडवाइस का प्लूरल क्या होता है, पीसेस ऑफ एडवाइस। There is much people को I can count, there are many people here, we don't have many time, we don't have much time, टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, हम सेकेंड्स और मिनट्स की फॉर्म में काउंट करते हैं, डिफरेंस आता है। फ्यूअर और लेस का भी सेम मतलब आ जाता है, फ्यूअर आपका यूज किया जाता है काउंटेबल आइटम्स के साथ, और लेस कहाँ पे, लिक्विड्स हो जाता है या फिर कोई चीज को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उस केस में आप लेस यूज करते हैं। फ्यूअर एरर्स, लेस कंफ्यूजन, जैसे अब क्या है टाइम के साथ लेस टाइम, इसमें फ्यू स्टूडेंट्स आ जाएगा, फ्यूअर स्टूडेंट्स, मिस्टेक्स आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी को आप किसी फॉर्म में काउंट कर सकते हैं, मनी को एज इट इज आप फ्यूअर मनी नहीं बोलेंगे, लेस मनी बोलेंगे। हाँ, अगर आपके पास कॉइन्स हैं तो आप किस फॉर्म में बोलेंगे, यू हैव फ्यूअर कॉइन्स, क्योंकि वो आप चीज काउंट कर सकते हैं, तो आपको चेक करना है किस चीज को आप काउंट करते हैं किसमें नहीं। देन दिस इज अबाउट द एडजेक्टिव्स, नो डबल कंपैरिजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शी इज वेरी मच ब्यूटिफुल, वेरी हमेशा सिंपल सेंटेंसेस में लगता है, मच कंपैरेटिव में लगता है, 2 कंपैरेटिव्स को मैं कंबाइन नहीं कर सकती हूँ। शी इज मोर टॉलर इकट्ठा नहीं आ सकता, मच का मोर बनता है ऑलरेडी कंपैरेटिव, टॉल का टॉलर बनता है कंपैरेटिव, 2 कंपैरेटिव्स कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। दिस इज ईजियर, ही इज स्मार्टर, दिस इज बेटर। You can also read the documentations on your own, बहुत लेमन लैंग्वेज में I have written everything for you, but हाँ एक बारी पढ़ना बहुत पड़ेगा अच्छे से। Prepositions with could change the meaning. This is exactly equal to phrasal verbs. Phrasal verbs भी क्या होते हैं, जब आप verb को preposition के साथ fix करते हैं और हर preposition अपना meaning देता है। Look के साथ मैं into लगा देती हूँ तो investigate होता है, look के साथ मैं after लगा देती हूँ तो taking care होता है। उसी तरह से गुड के साथ अगर चारों में डिफरेंट आ जाता है, गुड एट मैथ्स आप किसी स्किल में गुड हो सकते हैं, गुड फॉर हेल्थ आपकी बेनिफिट के बारे में बात होती है, जब आप किसी चीज को संभालने में अच्छे होते हैं गुड विद दैट थिंग, और जब आप काइंड होते हैं तो गुड टू अदर्स। ये आपको याद करना है और उसी से आपका आ जाएगा कि किस चीज में क्या लगेगा। जैसे अगर आ जाता है ही इज गुड विद चिल्ड्रन, गुड फॉर चिल्ड्रन, गुड एट चिल्ड्रन, गुड टू चिल्ड्रन, तो इट इज बी गुड टू योर पेरेंट्स। अभी आपको देखना है ही इज गुड किस तरह से, काइंड होने के लिए आपने टू लगा दिया है, हैंडलिंग चिल्ड्रन में आपने विद लगा दिया है, गुड हेल्थ बेनिफिट के लिए आ गया, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ आ गया, और शी इज गुड एट टीचिंग,
गुड इन टीचिंग नहीं होता है. टीचिंग इज अ स्किल एंड यू आर गुड एट समथिंग नॉट इन समथिंग. प्रेपोजिशंस बहुत जरूरी हैं. बहुत क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के प्रेपोजिशन से आते हैं. Similar way, remember it's a easy rule, married to someone is wrong or right. चेक करो, आज तक हम ये करते आ रहे हैं. She is married with that person. गलत है. She is married to that person. She is married to a doctor. He got married to her last year. तो married to is a right one. Married with is a wrong word. नेक्स्ट इज मॉडल्स मेक योर स्पीच पोलाइटर. और याद रखना कि मॉडल्स हमने डिफरेंट तरह के देखे थे. वुड, कुड, शुड, ये हमारे मॉडल्स पास्ट के आ जाते हैं. कैन एबिलिटी को रेफर करता है, कुड पोलाइटनेस को रेफर करता है, विल हमारा फ्यूचर को रेफर करता है, वुड हमारा कोई पास्ट हैबिट को रेफर करता है. व्हेन आई वाज 10 आई वुड एक्सरसाइज एवरी डे. व्हेन आई वाज 10 आई कुड प्ले गिटार. तो वो मेरा स्किल को रेफर कर रहा है. शेल मेरा एडवाइस को कर रहा था शायद, लेकिन फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट के लिए. शुड एडवाइसिंग के लिए प्रॉपर है. और टू फॉर्मल नाम है शुड का. शेल हम किसी चीज को कच्चा पक्का भी बोलते हैं. व्हेन वी आर डाउटफुल इन समथिंग आई और वी के साथ यूज किया जाता है. विल हम फ्यूचर के लिए बोलते हैं जब हम शॉर्ट है. उसी तरह से आपको चीजें याद रखनी है. और टू है मस्ट, हम किसी चीज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. सो मॉडल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर स्पीच. पोलाइट बनाते हैं. डिस्प्ले मे और माइट में भी फर्क होता है. जैसे मे आ जाता है मे और माइट में. मे ज्यादा चांसेस हैं, माइट कम चांसेस हैं. मे इज अ फॉर्मल वे टू टेक परमिशन. माइट इज व्हेन यू थिंक दैट दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन. सपोजिशन, पॉसिबिलिटी आ जाती है. छोटे होते आपने पढ़ा था, हम पूछते हैं किसी से बात करनी है तो शैल आई कम इन. मे आई कम इन इज अ फॉर्मल. अगर आपको शेल बोलते हैं तो आप फ्रेंडली मैनर में ऑफर्स के लिए, प्रपोजल्स के लिए पूछ सकते हैं. Can I come in is a wrong word. छोटे होते बोला था. So every model, lots of different things. Models की complete class है, जरूर सुनना. Everything matters. एक बारी रिवाइज कर लोगे, कभी क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे. So yeah, speak the right models. This idea may be wrong, it might be wrong. तो आपको convert करने हैं इसको and you can practice models through it. वन ऑफ के साथ एक बहुत सिंपल हैक है. वन ऑफ के जो होता है उसके साथ आपका प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है. बस इतना याद रखना है. वन ऑफ के साथ वन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ. डेज प्लूरल है लेकिन वर्ब जो लगा है सिंगुलर लगा है. तो वन ऑफ कंबाइंड सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल नेचर. पीपल और पुलिस आर प्लूरल. अब देखो सम साउंड्स, और मैंने जो आपको 100 रूल्स का एक लिस्ट फॉरवर्ड किया है उसमें चेक करना, वीडियो भी है. उसमें आई गिवन यू सर्टेन वर्ड्स जो सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं, और जो प्लूरल लगते हैं वो सिंगुलर लगते हैं. याद कर लेना वो वर्ड्स. ट्रांजिटिव के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगना है, दैट्स अ फिक्स्ड शॉर्ट. पुलिस और पीपल वाला बहुत पूछा जाता है. ये सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये प्लूरल बिहेव करते हैं. पुलिस एंड पीपल आर जनरली टेक प्लूरल वर्ब्स. यूजिंग इस मेक्स अ सेंस साउंड इनकरेक्ट. The police are investigating. People are waiting. Police is coming, गलत है. People is angry गलत है. People are angry, police are coming. The police are searching the area. Many people are here. तो ये words को plural ही रहने देना. There is और there are. There is और there are में भी difference है. Use there is for singular and uncountable and there are for plural. अब जैसे there is a problem, there are many reasons. ये आप काउंट करेंगे कि जो पीछे आपका नाउन दिया है वो किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है. There is a solution, there are many problems, there are two options, there is no reason. ये आप जितना इसको स्पीकिंग करेंगे उतना आपका प्रैक्टिस वर्ब्स का हो जाएगा. ये स्पॉटिंग एरर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल्स विद प्रोफेशंस. हमने आर्टिकल्स के लिए मैंने आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बताया है. कौन सा आर्टिकल कहाँ पे लगना है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन नो आर्टिकल्स, मटीरियल नाउन्स नो आर्टिकल्स, कलर्स के साथ नो आर्टिकल, लैंग्वेज के साथ नो आर्टिकल. लेकिन अगर हम नेशनैलिटी की बात करते हैं, सरनेम्स की बात करते हैं तो आर्टिकल द लगेगा. तो इस तरह से फिक्स्ड रूल्स हैं. प्रॉपर नाउन के साथ नो आर्टिकल, कॉन्टिनेंट्स के साथ आर्टिकल द, कंट्रीज के साथ नो आर्टिकल, मैक्सिको नो आर्टिकल, यूएसए द आर्टिकल. ये नहीं है जो सुनने में अच्छा लगता है. फिक्स्ड रूल्स है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या आएगा बताना, द आर्टिकल, कि द नहीं आएगा. चेक इट. जॉब्स आर काउंटेबल सो दे नीड एन आर्टिकल इन द सिंगुलर फॉर्म, राइट. तो इसमें क्या आ जाता है आपका, शी इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, राइट. इसमें आपको देखना है जो प्रोफेशंस होते हैं. आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आपको ही बिकेम अ मैनेजर. तो उस तरह से आपको आर्टिकल्स लगाने होते हैं इन सिंगुलर फॉर्म. स्किपिंग एन आर्टिकल इन्फ्लुएंस बाय इंडियन लैंग्वेज वो थोड़ा बुरा लगता है और इससे आपकी इंप्रूवमेंट आती है. डिड प्लस बेस वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट. डिड के साथ लोग V2 लगा देते हैं, नहीं रिक्वायर्ड है. डिड के साथ V1 आना चाहिए. डू, डिड, डन. शी डज अ गुड जॉब प्रेजेंट, शी डिड अ गुड जॉब पास्ट,
एंड शी हैड डन अ गुड जॉब, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट वाला जो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया हमने प्रेजेंट को पास्ट परफेक्ट में। उसी तरह से आई डिड नॉट गो, आई शी डिड नॉट ईट, डिड नॉट के साथ ईट लगाया। I did not saw me, I did not see, she did not completedly, she did not complete, we did not understood, we did not understand, he did not wrote, he did not write. Say versus tell, very very important. Tell leaves a person or an object, say focuses on the message. Tell me the truth, he said that he was busy, he dashed me to wait, he said me to wait or he told me to wait. ये आप चेक करना, she dashed that she was tired. अब इसमें क्या है, रूल को अप्लाई करो एंड टेल मी द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। टेल में हमें किसी पर्सन की जो बोल रहा है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन से में हमें मैसेज के बेसिस पे हम बता सकते हैं। दिस रोल इज एन एवरीडे स्टोरी टेलिंग, रिपोर्टिंग, गिविंग इंस्ट्रक्शंस। जैसे व्हाट डिड ही से, टेल तो नहीं बोलते, व्हाट डिड ही टेल। चेक करना क्या बोलते हैं एंड ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। नहीं आएगा तो देन आई विल हेल्प यू बिकॉज इट्स अ वेरी इजी, और से और टेल को मल्टीपल टाइम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट इज योर लुक फॉरवर्ड प्लस, इट्स लाइक वी एंड ing। अब यहाँ पे क्या आता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको रूल्स में होते हैं, जैसे हेजिटेट, यंग गर्ल्स हेजिटेट टू टॉक टू द स्ट्रेंजर्स, पर ये सेंटेंस गलत है, सुनने में अच्छा लग रहा था। यंग गर्ल हेजिटेट टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर्स। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, गलत है। आई लुक फॉरवर्डिंग टू मीट यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग। अब यहाँ पे वर्ड्स क्या है, टू इज अ preposition, नॉट infinitive टू। आफ्टर preposition we use verb plus ing। अब उसी तरह से I look forward to meeting you, she looks forward to joining in। अब ये चेक करना, इन वर्ड्स के साथ हमेशा आप ing's जरूर लगाएंगे। उसी तरह से young girls hesitate के साथ hesitate टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर्स, हेजिटेट टू टॉक टू द स्ट्रेंजर्स नहीं होता है। तो कुछ फिक्स वर्ड्स हैं, आपको सारे रूल्स में मेंशन है, ये वाले जो प्रॉम्प्टली आप पूछे जाते हैं स्पॉट द एरर्स में आते हैं, आई हैव गिवन यू दोस। लेकिन हेजिटेट, फॉरवर्ड, ये भी वर्ड्स हैं जिनके साथ ing's ही लगता है। suggest, avoid, suggest me। अब he suggested that I apply, he suggested applying earlier, he suggested me नहीं बोलते हैं suggest के साथ, और हम बहुत बार बोलते हैं please suggest me, please suggest, that's the right way। तो suggest अकेला suggest बोलना। Next is your prefer A to B। You prefer tea to coffee, you prefer tea than coffee, I prefer tea to coffee, I prefer tea than coffee। than हम normally comparison के लिए बोलते हैं, लेकिन prefer के साथ हम to अप्लाई करते हैं, ये चीज़ याद रखना। लास्ट रूल इज used to, जो हम past habits के लिए बोलते हैं। एक्सलेंट स्टोरी टेलिंग है, मॉडल्स के लिए हम यूज करते हैं। आई यूज टू वेक अप अर्ली, शी यूज टू लिव इन दिल्ली। अब क्या आता है इसमें, जो यूज टू है वो हमें कुछ ऐसी चीज बताता है जो नॉर्मल थी पास्ट में, शायद अब नहीं है, एंड दिस इज वेरी कॉमन इन टेलिंग अबाउट द रूटीन्स, हैबिट्स। नॉर्मली क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे मैंने आपको वुड और कुड में दिया था, उसी तरह से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं यूज टू में इफ यू गेट एन ऑप्शन रिलेटेड टू इट। बट वुड एंड कुड आर द मोर सुटेबल एंड मोर आस्क्ड क्वेश्चंस। यूज टू बहुत ज्यादा पूछा जाता है ओनली इन द टर्म्स व्हेन इट इज इन द स्पॉटिंग एरर्स। आई होप दिस क्वेश्चंस एंड दिस रूल्स वर क्रिस्टल क्लियर, और अभी आपको याद हो गए हो तो आई थिंक if this video was informative, do let me know, just put up in the comment section कोई doubt आया हो। Hope you enjoyed the video and I hope that you cracked the code of 17 out of 17 in verbal English. Take care, have a good day, bye bye, and don't forget to join the WhatsApp group. Free WhatsApp group link is there in the description below. Take care, have a good day, bye bye.